Hello everyone. We will continue today with the chapter Periodic Table in Chemistry of class 9. We have already discussed in this chapter about the scientists who came up with the various theories on the periodic table. Although the theory of Moseley was the best one because it concentrated more on the arranging of elements in the periodic table on the basis of atomic number, and therefore this theory eradicated all the problems which were coming before. तो आगे हम लोग इस थ्योरी को हम लोगों ने कंटिन्यू करा एंड दिस केम अप विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Now talking about the modern periodic table, the modern periodic table, as you all can see, has how many periods over here? 1 2 3 4 5 6 7 7 periods. Now period are the horizontal rows over here, and talking about the columns over here, vertical columns 1 2 and till so on till 18. There are 18 vertical columns over here. So these vertical columns have been given the name as groups. Now every period and every group signifies something. If the period is 1, that means that the number of shell in it is 1. If the period is 2, it means that the number of shell is 2. Period is 3, that the number of shell is 3. And if the number has been given as 1 on the group. Group 1 means that the number of valence electrons is 1. Group 2 means number of valence electron is 2. So on the basis of this only, the group and the period theory was made. These elements, the lanthanide series and the actinide series, were discovered later on, and therefore they have not been able to give place in the periodic table, and they have been given a place down over here. Okay, now let us start over here. Periods in the modern periodic table. Talking about the periods, already I have told you that the periods are 7 in number. These are 7 horizontal rows of elements, and each period over here signifies the number of shell. Period 1, 1 shell. Period 2, 2 shell. Period 3, 3 shell. That is, each period signifies the number of shells over here. Okay. With the help of an example, I'm going to tell you over here how the period signifies the number of shells over here. Just see over here. I'm taking the case of magnesium over here. Magnesium, it has atomic number as 12. So the electronic configuration of magnesium that will be there will be 282. Now, we will find out the period in which it lies. As I've told you, period signifies the number of shells. How many shells are there? 1 shell, 2 shell and 3 shell. That is K, L, M. There are 3 shells over here, K, L, M, N. So the period in which it will lie will be third. Let us see. Magnesium over here, you can see, lies in the period 3. So easily by the electronic configuration, you can easily find out the period in which the element lies. Okay. On the basis of the number of elements in the period, they have been categorized over here. Short, that is, it has only 2 elements over here, hydrogen and helium. So it is the shortest one over here with 2 elements. Short, that is 8 elements over here. Short, again 8 elements over here. Now, talking about the way in which the period is from left to right, we will talk about this. As you can see, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. What the difference you can see? Just see the difference over here, everyone. The difference that you all can see is about the electronic configuration change. You will see that there is a change in electronic configuration 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. That is number of shell as we move from left to right in a periodized scheme. The number of shells in a period is always same. 2 shells, 2 shells, 2 shells, 2 shells, 2 shells and 2 shells, so on. But the number of valence electron increases by 1.
The valence electron is increasing by 1. You all can see 1, 2, 3, 4. That is the, as we move from left to right in a period, the number of valence electron increases by 1. One more thing we will notice over here, we already know that the metals always have 1, 2 or 3 electrons in their last shell, that is the valence shell. And the non-metals always have 4, 5, 6 electrons in the last shell. What we see over here is that 1, group 1, group 2 and group 3. That is, here we will see that basically we will be able to find metals in these groups because they have 1, 2 or 3 electrons in the last shell. And when we talk about the 4, 5, 6, 7 electrons in this last shell, we see that they are non-metals over here. Talking about the 18th group over here, that is the last one, the noble gases group. These are also called as the inert gases or the noble gases because the outermost shell is completely filled. As you all can see, it has 8 electrons over here. The outermost shell is completely filled, and therefore the valency will be 0. Now talking about valency is the number of electrons lost or gained. सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो दैट इज एक्चुअली द वैलेंसी. सो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है. मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स. मेटल्स क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं. दे गिव 1 or 2 or 3 electrons and therefore they have the valency over here as 1, 2 or 3. Now the non-metals have such a thing that they gain electrons क्योंकि उनके लास्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो therefore they gain electrons. और इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. हाँ, यहाँ पे देखो 4 है तो लास्ट शेल में 8 होना चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें. अब यहाँ पे 5 था तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, 6 था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, 7 था तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करो, 8 है तो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड ओवर हियर एंड देयरफॉर द वैलेंसी इज 0. सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ओवर हियर. Now the period 3, exactly everything will be same whatever I have told for the period 2. Trend from left to right in the period I have already discussed that the number of shells will remain same as we move from left to right in a period, and the number of valence electrons increases by 1. We have already discussed this. And talking about the metallic and the non-metallic character, as we move from left to right in a period, the metallic character decreases and the non-metallic character increases. Okay, now we will talk about the groups, the significance, the changing of things as we move from left from top to down. So we are going to talk about two groups now. Now what a group signifies? Group signifies the number of electrons in the valence shell. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बताता है ग्रुप. अगर फर्स्ट ग्रुप है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 है उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. सही है, तो इस बेसिस पे अगर ग्रुप हमारा यहाँ पे 6 है तो उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ग्रुप हमारा 7 है तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ग्रुप तो इसी बेसिस पे हमारा यहाँ पे है. ओके, नाउ एज वी कैन सी, मैं एक एग्जांपल इस पे भी ले लेता हूँ ग्रुप पे भी, एज वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ पीरियड ऑल्सो. यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का एग्जांपल था, एटॉमिक नंबर कितना था? 12 था. नंबर ऑफ शेल्स कितने थे? यहाँ पे 3 थे, KLMN. सो KLM 3 थे यहाँ पे. लास्ट शेल है, लास्ट शेल कौन सा शेल होता है? बैलेंस शेल होता है. दिस इज द बैलेंस शेल ओवर हियर. ये बैलेंस शेल होता है, और बैलेंस शेल में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं. 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि किस ग्रुप में लाई करेगा? ये सेकंड ग्रुप में लाई करेगा. सही है, मैं सेकंड ग्रुप कह दूँ या फिर मैं इसको रोमन में 2A यहाँ पे लिख देता हूँ. सही है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी groups 1, 2, 3 to 12, 13 to 16, 17 and 18, and whatever they have been written over here in the Roman 1 even. अब देखो यहाँ पे ग्रुप 1 है, इसको we even call it as group 1A,
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप हो गया, द ग्रुप 1A, दिस ग्रुप फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रांसियम। सो ना हाइड्रोजन टू फ्रांसियम ये ग्रुप 1A है, एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों ये कहा जाता है? वी कॉल दिस ग्रुप एज एल्कली मेटल्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म एल्कलीज। सही ना, ये जो ग्रुप हमारे हैं फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम, ये मेटल्स हमारे वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर soluble bases. Okay, now we are going to talk about the second group over here. अब ग्रुप सेकंड है हमारा यहाँ पे, ग्रुप सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये भी वैसे ही हमारा सेम है, ये भी मेटल्स हमारे इसमें होते हैं हमारे, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक, ग्रुप 2A। तो लास्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में हमारा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, सही ना, थर्ड वाला ये यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे 3 to 12, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 1B to 7B एंड 8th one। तो 3 to 12 बोलना यहाँ पे इजी होगा, तो आई एम गोइंग टू से इट एज 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हमारे। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, से ना, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं। यू विल स्टडी इन क्लास 11th व्हाई दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ होती है। लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट जितने भी है वो यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड 6 और ग्रुप 3 में है, यानी कि इसी जगह पूरे के पूरे ये एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, सही ना। और एक्टिनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स यहाँ पे इस जगह हैं, पीरियड 7 और ग्रुप 3 के हैं ये, सही ना। दैन दे वर discovered later on, therefore they have been given place down in the periodic table. Now talking about the post transition elements, group 13 to 16, that is 3A to 7A, 3A to 7A, 3A to 7A, से ना, 3A to 7A यानी कि यहाँ से ये और ये, यानी कि 3A to 7A, 13 to 17 are called as post transition element। post का मतलब हो गया बाद में, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद वाले जो ये ग्रुप है, तो दैट इज कॉल्ड एज दी पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारा है, तो दैट इज़ द 7A ग्रुप, दैट ग्रुप 17। तो इसको हम लोग हैलोजेंस भी कहते हैं, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं हैलोमीन सॉल्ट। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर ग्रुप है ये हमारा हैलोजेंस। उसके बाद में लास्ट ग्रुप हमारा ग्रुप 18 है, जीरो ग्रुप, सही है। तो ये नोबल गैसेस होते हैं या फिर इनर्ट गैसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ एयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ चेंज करेगी एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, देखो पीरियड चेंज हो रहा है। पीरियड यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और पीरियड क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 शेल थे, 3 शेल, 4 शेल, 5, 6, 7, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीजेज बाय 1 एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। आई एम अगेन स्पीकिंग, as we move down a group the number of valence shell increases by 1। अब यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग ऑफ एयर, हम लोग देखेंगे ग्रुप में यहाँ पे सेम क्या है, 1 1 1 1, ये ग्रुप 1A लिया गया है। तो यहाँ पे देखो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप विल रिमेन सेम एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। Talking again about it, the number of electrons in the last shell will always remain same। Okay, number of electrons same होते हैं तो chemical properties भी क्या होंगी? Same ही होंगी। Okay, moving to the next page। अब यहाँ पे
थोड़ा एक अच्छे तरीके से इलाबोरेट करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ग्रुप 1A बहुत अच्छे से सुनना है यहाँ पे, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू टेल मी। ग्रुप 1A इनकी वैलेंसी क्या होगी? दे विल हैव वैलेंसी एज 1। दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। से ना, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लार्ज शेल में होता है एंड दे गिव 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दे हैव वैलेंसी एज 1। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होते हैं, दे आर लाइट मेटल्स एंड दे कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ ऑल्सो। एंड एज आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, इनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स बोल रहे हैं तो यानी कि दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म एल्कलीज। Okay, talking more about them, we will now this thing, strong reducing agents. They are strong reducing agents. Strong reducing agents का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? They are good electron donors, and देखो लास्ट शेल में इनके पास में क्या होता है? They have 1 electron and therefore they easily donate 1 electron to establish an octet. हाँ, तो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल में होता है एंड देयरफॉर दे गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव आल्सो बिकॉज ऑफ द लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। दे कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ। वन थिंग मोर, दे देखो बॉन्डिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्डिंग इसमें होती है इनके मेटल्स में, एंड देयरफॉर दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। Now talking about the group 2, alkaline earth metals. Alkaline earth metals, everything will be same except for the valency will be 2. Because the number of electrons in the valence shell is 2, everything will be same with respect to the alkali metals. Talking about the transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए थे, फ्रॉम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने बताए थे ये वाले, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे यार, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें 2 टाइप्स के हो गए। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे हो गए, ये सबके सब मेटल्स हमारे होते हैं, और दूसरा हमारे होते हैं यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द लैंथेनाइट सीरीज एंड द एक्टिनाइट सीरीज विच आर गिवन एट द end of the periodic table over here. They were discovered a little late and therefore they have been given a place over there. यहाँ पे लैंथेनाइट मैंने पहले ही बता दिया है, पीरियड 6 और ग्रुप 3 यहाँ इस जगह बिलोंग करेगा, और एक्टिनाइट हमारा पीरियड 7 और ग्रुप 3 यहाँ पे बिलोंग करेगा। सब ये एलिमेंट जितने भी हैं वो इसी जगह हैं, इस पर्टिकुलर जगह देखिए, और इस पर्टिकुलर जगह लैंथेनाइट वाले एलिमेंट्स लिखे। ओके, now we are going to talk about the halogens. Halogens हमारे कौन से ग्रुप पे होते हैं? They are the group 17 elements. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 में बोल दूँ या फिर मैं 7A स्पेसिफिकली इनके लिए बोलूँगा। तो ये हमारे जो मैंने बताया, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में को बिलोंग करेंगे। पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 13 से 17 तक था, तो उसी में ये बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ग्रुप 17 यहाँ पे हो गया, फ्लोरीन से लेकर ये नीचे जा रहा है, सही ना, फ्लोरीन से लेकर नीचे तक है, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एंड देयरफॉर दे रेडीली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों हो गए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इनके पास में कमी है स्टेबल बनने के लिए, लास्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लोग ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वैलेंसी की 1 है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, साथ ही साथ में ये क्या है, लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने बताया था नॉन मेटल्स में लास्ट शेल में अगर 4 5 6 7 लास्ट शेल में अगर 4 5 6 7 हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं, एंड देयरफॉर दे आर नॉन मेटल्स ऑल्सो। नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे ये दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हैलो का मतलब यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। हैलो मीन सॉल्ट, एंड देयरफॉर दे readily form salts.
सॉल्ट यानी कि सॉल्ट का मतलब ये भी नहीं होता है सिर्फ हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 1A के एलिमेंट से रिएक्ट करके या 2 वाले 2A के एलिमेंट से रिएक्ट करके ये हमारे सॉल्ट्स बना लेंगे। सॉल्ट क्या होता है बेसिकली, एक उसमें कैटायन और एक एनायन होता है। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे एलिमेंट है वो हमारा कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन है, और सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो पाया जाता है, अबंडेंस का मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ग्रुप 17 में, वो हमारा होता है क्लोरीन। आयोडीन यहाँ पे इस यूज्ड, जो हमारा जो आयोडाइज सॉल्ट आता है तो उसमें आयोडीन यहाँ पे यूज़ हो जाता है। क्लोरीन इज़ यूज फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरीन इज़ यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, की टूथ दिखे ना हो। ओके ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे तुम लोग लिखा हुआ पाओगे अबाउट द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, आयोडीन एस्टेटीन नेचर अंडर रिसर्च। मैं ये बताता हूँ, आयोडीन एक्चुअली बिहेव्स एज एस्टेटीन। एस्टेटीन यहाँ पे आयोडीन के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो हमारा एस्टेटीन हो गया, है ना। आयोडीन एकदम एस्टेटीन की तरह उसका पूरी प्रॉपर्टीज़ उसकी पाई जाती हैं। एस्टेटीन इज एक्चुअली अ हाईली radioactive element and might accumulate in the thyroid gland like iodine। सही है, तो उसके नेचर वैसा पाया जाता है आयोडीन का, लाइक एसिटीन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे कौन से हो गए यहाँ पे, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हो गए, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है हमारा नोबल गैसेस। हम लोग कह रहे हैं कि जो लास्ट ग्रुप हमारा है यहाँ पे, तो लास्ट ग्रुप दैट इज़ द नोबल गैसेस ग्रुप। तो इनकी अगर हम लोग बात करें, इनके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि लास्ट शेल इनका पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नियॉन का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। नियॉन का यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 10 है। नोबल गैसेस, तो लास्ट नियॉन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे आर्गन का, यहाँ पे कितना है, 18। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8। इनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट, ऑक्टेट का मतलब है यहाँ पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे आर हाईली स्टेबल। अब देखो यहाँ पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना ही लॉस हो रहा है, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, देयर वैलेंसी इज 0, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, एंड देयरफॉर द वैलेंसी इज 0। दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द रिएक्शंस। नाउ वी विल टॉक लिटिल अबाउट देम। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात ही कर लिया है यहाँ पे, ये दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द रिएक्शंस एंड देयरफॉर दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस क्यों हो गए, क्योंकि इनर्ट गैसेस होती हैं, लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, रिएक्टिव नहीं होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रिज एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द ब्रिज एलिमेंट्स। तो वी सी समटाइम्स क्या होता ही है, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम का, हाँ लिथियम मैग्नीशियम, हाँ यहाँ पे हो गया, लिथियम मैग्नीशियम हो गया, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रिसेम्बलेंस शो होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। बेरिलियम एल्यूमिनियम, हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है। Now talking about the other features of the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अदर फीचर्स ये हैं कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। सही ना, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। अब देखो यहाँ पे पीरियड 1 अगर ले लिया मैंने, पीरियड 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 × 1² कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, पहले शेल में यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम मैं पीरियड 2 की अगर बात करता हूँ, ये पीरियड 1 था। अब पीरियड 2 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा के शेल था। एल शेल की बात करूँगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2n² फॉर्मूले से 2, यानी कि कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। यानी कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट पीरियड। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पीरियड्स। पीरियड के बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी बात कर ली है। नाउ वन थिंग इज रिटन ओवर देयर कि द प्रॉपर्टीज विच रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम है। यानी कि पीरियड के में जो एलिमेंट्स होते हैं एक के नीचे एक एलिमेंट्स होते हैं, वन के एक के नीचे एक एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज रिसेम्बलेंस करेंगे। हाँ, दे विल शो अ रिसेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर इन अ ग्रुप। और ग्रुप में क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है सबका। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है यानी कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। एज हम लोगों ने कुछ और बातें कर ली थी पीछे ही, तो यहाँ पे दे रखी हैं वो भी बात कर लेते हैं। मेटल्स यहाँ पे क्या होते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे इस साइड तुम लोग पाओगे यहाँ पे नॉन मेटल्स के। ये मेटल्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे अपर राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे नॉन मेटल्स पाओगे तुम लोग। एंड दीज एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैसेस होती हैं। नाउ talking about the other things over here, elements are placed in a periodic table on the basis of electronic configuration. As we have discussed this topic, we are not going to discuss further. इधर डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ नया है यहाँ पे। Chemical properties depend on the number of electrons an atom can gain, lose और share। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करती हैं, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे लास्ट शेल में उसी पे डिपेंड करती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है टॉपिक। अब यहाँ पे नया टॉपिक है एक हमारे पास में, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है कि एन एलिमेंट सम एलिमेंट शो एन एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन होता है, कार्बन एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी। हाउ कार्बन एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म में एग्जिबिट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। है ना, कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। फुलरीन क्या होता है, फुलरीन इज एक्चुअली ए स्फेरिकल फॉर्म वेयर द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स में कार्बन अरेंज होते हैं एक स्फेरिकल फॉर्म में, फुटबॉल जैसे होती है। फुटबॉल में तुमने देखा होगा वहाँ पे हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे फुलरीन का भी पूरा मॉलिक्यूल होता है वैसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कंपाउंड। सही, यानी कि जो भी कंपाउंड होता है तो उसमें जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का एफिनिटी रखता है, तो दैट हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल द नॉन मेटल्स हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू द मेटल्स। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, तभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स एनान फॉर्म करते हैं, मेटल्स हमारे कैटायन फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया ना, मेटल्स की कम होती है और नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। तो यानी कि अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड में। एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी, किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना डाउन अ ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीज अक्रॉस डाउन ग्रुप। Okay, anything more? Okay, the chapter is complete. Now you do the exercises over here, and after doing the exercises, if you have any problem, पहली बात है चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे स्टडी करना और कंसेप्ट को समझना, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं जो आगे तुम लोगों को ले जाएं। ओके, थैंक यू।